Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, स्वागत है आपका, शुरुआत करते हैं. So, we have been doing for the past 2 or 3 lectures the very beginning of accountancy, this subject which is the core teaching content on this particular platform. In fact, अगर आप accounts के अंदर बढ़ोगे तो ये channel आपको बढ़ने में help ज़रूर करेगा. Now, till last time we have tried to understand कि ये bookkeeping क्या होता है, मतलब the literal name of the subject, कि bookkeeping and accountancy का मतलब क्या है. अगर आपको दोनों का अंतर समझना है, I did explain it in the last lecture. Today हम लोग accountancy के अंदर कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं. अभी हो सकता है कि जो मैंने कहा वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा. शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. Whenever we do not know the meaning of a word, because the language, example, the English language, it is a vast language. Okay, in fact, maybe the Hindi language or the Sanskrit language is even more bigger, but उतनी जानकारी मैं रखता नहीं हूँ, तो मैं अंग्रेजी के बारे में बात करूँगा. ओके, तो because it is the obviously the international language of communication, अगर इंग्लिश में एक वर्ड हमको नहीं आता, we tend to google it, just write the word and that's it. गूगल सबसे पहले हमको ना उसका जो मीनिंग है वो हमको बताएगा, वो मीनिंग को सेंटेंस में यूज़ करके, वो वर्ड को प्रोनाउंसिएट करके हमको ऑडियो में सुनवा के देगा. सो इन द एवरी लैंग्वेज, अकाउंटेंसी इज काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. ओके, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन वर्डिंग्स जो उस लैंग्वेज के साथ में जुड़े हुए हैं. इफ़ यू आर समबडी हु स्टेइंग इन इंडिया, देन यू डू नो हिंदी. इफ़ यू आर स्टडिंग इन महाराष्ट्र, आपको मराठी भी आएगी. ओके, और इंग्लिश येस, क्योंकि वो काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. ओके, एंड जो ऊंची हायर एजुकेशन होती है वो नॉर्मली इंग्लिश में ही होती है. सो ये लैंग्वेजेस आपको आ जाएंगे. बट व्हाट इफ़ आपको इन फ्यूचर जर्मनी जाना पड़े? ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो इट इज़ गुड दैट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जर्मन्स. आपको फ्रेंच जाना पड़े, फ्रांस, वेल फ्रेंच नहीं होता, वहाँ के लोग फ्रेंच होते, हाँ, तो फ्रेंच आपको आना ज़रूरी है. इफ़ नॉट द कंप्लीट लैंग्वेज, टूटा फूटा तो आना चाहिए. ओके, सो देर आर मैनी मैं यूट्यूब काफ़ी देखता हूँ, तो मेरे लिए यूट्यूब मेरे एंटरटेनमेंट का स्तोत्र है, सोर्स है. तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो व्लॉग करते हैं. व्लॉग तो कोई चाइना में रहता है तो उसको चाइनीज़ भाषा समझ में भी आती है, वो यूज़ भी करता है.
बात भी करता है, कोई जापान में रहता है तो उसको जापानीज भाषा आती है, कोई रशिया में रहता है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, दीज पीपल हैव एडॉप्टेड बिकॉज दे नो कि जब हमारा काम उस देश में है तो उस देश की भाषा हमें आनी चाहिए. तो माय डियर, आने वाले 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक, यू आर इन द देश ऑफ जूनियर केजी. वेल सॉरी, जूनियर केजी नहीं कहना चाहिए था, जूनियर कॉलेज कहना चाहिए था, हो जाता है कभी कभी. ओके, what am I trying to tell you? That if you are in the next 2 years going to be in the dunya called as junior, not KG, college, then you better know the language of accountancy, and that is what we are trying to from today onwards understand. So in the today lecture, it is not possible that I can teach you all the wordings, but at least I will get started. Okay, if in accountancy in the future problems to come, which are going to be so many, what are the words that are going to be used और उसका मीनिंग क्या है, पहले वो तो समझ लूँ ताकि हमको पता चले कि हमको खोजना क्या है, हमको हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या ढूंढना है. ओके, विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल वंस टुडे. विल कवर अप मोस्ट प्रोबेबली 5 or 6 वर्डिंग्स. ओके, एंड देन नो प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट टाइम और 5, उसके बाद में और 5, थोड़ा थोड़ा करके. बूंद बूंद से सागर बनता है, शब्द शब्द से हमारी पूरी वोकैबुलरी अकाउंटेंसी की बन जाएगी. सबसे पहला आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ट्रांजैक्शन. दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, ऐसा काफ़ी बार होगा कि मैं आपको बोलूँगा दिस इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी सिंपल. नाउ टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, इफ़ आई से इट इज़ सिंपल, इट इज़ सिंपल. इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट, मैं बोलूँगा डिफिकल्ट है, ध्यान देना, बट सिंपल है तो सिंपल ही होगा ना. ओके, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है. इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट आई हैव ट्राइड टू टेल यू कि वी आर रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, अरे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, जो दुकान में होता है, बिजनेस में होता है, कंपनी में होता है. क्या होता है दुकान, रिकॉर्ड, और कंपनी या बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन, लेन देन. ओ, तो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन. यस, इन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लेन देन कौन से टाइप का होता है. लेन देन होता है, लेन देन, लेन देन, ये चलते रहता है. गिव एंड टेक, गिव एंड टेक. इट इज नेवर अ वन वे. अकाउंटेंसी इज नेवर अ वन वे डायरेक्शन. गाड़ी चलानी है, कैसे चलानी है, सीधी, उधर से गाड़ी आई तो अरे टेंशन मत ले, वन वे है. नहीं नहीं, अकाउंटेंसी वैसा नहीं है. गाड़ी जा सकती है और गाड़ी आ सकती है, दोनों तरफ पे बैलेंस मेंटेन होता है. ओके, सो ट्रांजैक्शंस कितने वैरायटी के होते हैं, देखो होते 2 वैरायटी के, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी में 2 वैरायटी आते हैं, कैश क्रेडिट, और नॉन मॉनिटरी में बार्टर. लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मेनी ऑफ यू नो दिस. जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ी रोशनी डाल के देता हूँ कि इनका मतलब क्या है. ओके, देखो ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या समझना है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 persons or parties for money or money's worth is known as a transaction. When आप किसी गरीब आदमी को आपके गुरुद्वारा के बाहर, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, स्टेशन पर, बीच पर, जहाँ पर भी आपको कोई गरीब मिला और आपको तरस आया, आपने उसको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे थे और आपके दिल में कितनी दया है, you gave him or her something. Is that a transaction? No. Why? Because it is not an exchange. First word क्या है? Exchange. जब आप उस गरीब इंसान को पैसे देते हो, are you expecting something back? Actually no. हाँ, मे बी वो आपके लिए दुआ देगा, बट वो एक एक्सचेंज नहीं होता. ओके, तो आई रिपीट, एक्सचेंज होना जरूरी है. दैट इज अ ट्रांजैक्शन. मैंने तुझे ये दिया, अब तू मुझे कुछ दे, एक्सचेंज. मैंने तेरे लिए ये किया, अब तू मेरे लिए कुछ कर, एक्सचेंज. सो आई रिपीट, एक्सचेंज, अदला बदली. ओके, लेन देन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होते हैं. गुड्स का मतलब प्रोडक्ट. तो ये जो चीज़ है रिमोट, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है. ये जो चीज़ है ये क्या है, एक प्रोडक्ट है. और देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट यू गेट द आइडिया, दे आर प्रोडक्ट्स, गुड्स. सर्विसेज का मतलब क्या है, व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, आई एम टीचिंग यू, इट्स अ सर्विस. कैन यू से देखो सर ये सर्विस है, ये आपका टीचिंग है, नहीं, वो दिखाई नहीं देता. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ,
दैट बिकम्स अ सर्विस. तो एक्सचेंज जब होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ transactions. Okay, so we will get into that. Monetary and non-monetary. Money and no money. Non-monetary का मतलब no money. अच्छा, so monetary transaction का मतलब क्या होता है? अरे बाबा, जहाँ पे लेन देन पैसे देकर किए जाता है उसको कहते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. जहां पे लेन देन पैसे के इन्वॉल्वमेंट के बगैर होता है उसको कहते हैं नॉन मॉनिटरी. ओके, होल्ड ऑन, लेट मी कम टू दिस वन बाय वन. तो व्हेन यू गो टू अ शॉप, आपके लोकल दुकान में आप जाते रहेंगे ना, एंड टू बाय व्हाट? ममा सेज इन द मॉर्निंग, बाबा आई डिड नॉट कुक एनीथिंग, सो डू वन थिंग, गो टू द शॉप and buy bread and come. So she gives you money, you go and you take the bread, pav bread, you give the money and you come back. तो आपका और दुकानदार के बीच में कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन. क्यों? आपने पैसे दिए. मैनी में से नो सर, आजकल वो पैसे नहीं देते, वो सर मोबाइल से ना कुछ स्कैन होता है, गूगल पे, फोन पे, वो करते. तो क्या हो गया? वो डिजिटल मनी है. You still are paying at that very moment. So I repeat, when you pay at that very moment, नोट निकाल के दो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, या डिजिटली मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर करो. आपने तो पैसे दे दिए ना, यू मेड द पेमेंट, दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. ओके, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो ना, आई वेंट टू द शॉप बट ममा डिड नॉट हैव द मनी, सो ममा सेड गो एंड टेल द शॉपकीपर we will pay after 1 week. The shopkeeper will agree, don't worry, they know us. दुकानदार हमको जानता है 10 सालों से. You go, चचा जी आप 10 पाव दो ना, पैसे मम्मी ने बोला बाद में देगी. He gives you, no complaints, because आपके और उनके बीच में जान पहचान है. वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आपने प्रॉमिस किया है कि आप पैसे दोगे, अभी नहीं बाद में, बट दोगे ना. Whether you pay money now, it's a monetary transaction. Whether you pay money later, it is still a monetary transaction. But if you don't pay money at all, that is called as non-monetary. उसका एक एग्जाम्पल है barter transaction. अभी यही 3 चीज जो मेरे पीछे है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ. So the first time you went to the shop, what did you do? You took the product and you gave money. When you give money, you give hard cash, or whether you give it, ऊपर मैंने बताया, मोबाइल टू मोबाइल, ई कॉमर्स, ओके, ऑनलाइन. व्हाट इज दिस? कैश ट्रांजैक्शन. वेरी सिंपल, ज़्यादा कष्ट नहीं है याद रखने में. ओके, मैनी टाइम्स व्हेन यू आर डीलिंग विथ अ शॉपकीपर, इट इज़ नॉर्मली अ कैश ट्रांजैक्शन है. बट अगर घर पे मिल्क आता है, मे बी द मिल्क, 1 पैकेट 2 पैकेट मिल्क आता है, 60 रुपीज़, 68 रुपीज़, डू यू पे ऑन दैट डे? नो. ये फिर वो क्या हो जाता है? दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तुम गया, पूरे परिवार ने शॉपिंग किया, पैसे बाद में देने वाले हो. तो आई रिपीट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? आपको टाइम मिलता है पैसे देने का. अभी के अभी नहीं देते हो, अभी खरीदते हो, पेमेंट बाद में करते हो. तो आई रिपीट माई सेल्फ, दुनिया में दोनों चलता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्योंकि पैसे मिलेंगे ना, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, बट मिलेंगे. दे आर मॉनिटरी. बट व्हाट इज नॉन मॉनिटरी? उसमें तो पैसा आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, 1 साल के बाद भी नहीं है, कभी नहीं है. उसको कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन. इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में, कैश बाद में आया. ओके, डिजिटल पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, अरे वो तो अभी पिछले 2-3 साल से. नोबडी न्यू दैट because there were no smartphones around. So from ancient time, transactions though, exchange has been happening for many years, centuries. There was money was not there. तब कैसे अदला बदली होती थी? तब होती थी अदला बदली barter transaction में. कि मतलब क्या है? Like you see, okay, the handsome looking gentleman is saying, आप ये बकरी ले लो. वेल, वो बकरी नहीं है, वो शीप है. आप ये ले लो, मेरे को सेब दे दो. इट्स एन एक्सचेंज. ओके, सिमिलरली व्हेन यू गिव अ प्रोडक्ट एंड यू टेक अ प्रोडक्ट, ऊपर ओके, आप मक्का ले लो, आप चावल ले लो, मेरे को ब्रेड दे दो. ओके, आप सेब ले लो, मेरे को टी शर्ट दे दो. वो एप्पल बहुत बार आ रहा है, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू,
व्हेन यू एक्सचेंज सर्विसेज, अगेन उस जमाने में लॉन्ग टाइम बैक, ईयर्स बैक, ओके, देयर वाज नो मनी, तो कारपेंटर यूज्ड टू टेल द प्लम्बर, तुम आके मेरे घर पे ये बेड बना के जाओ, मैं तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारा प्लम्बिंग का काम कर देगा. एक्सचेंज सर्विसेज, दैट्स अ बार्टर ट्रांजैक्शन. तो एक्चुअली सबसे पहले वो बार्टर ट्रांजैक्शंस, ओके. अभी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टफ, बिकॉज ऑफ कैश बीइंग रेडली अवेलेबल, डिजिटल पेमेंट, ओके, 4G नेटवर्क बीइंग अवेलेबल, हाँ, थिंग्स हैव चेंज्ड, बट बेसिक ट्रांजैक्शंस आर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी के अंदर दो आते हैं, कैश, क्रेडिट. नॉन मॉनिटरी में एक आता है, बार्टर transaction. I hope that is understood by you. So that is the first type. Again, let me clear it. Transaction क्या होता है? Okay, everything is there in your textbook. The content which is there, it's just that I'm presenting it my style. That's it. बाकी आपको ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है. You will get everything in your textbook. But yes, later on I will do my best कि इसका जो PDF है वो Telegram के चैनल पे आपको आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, as in when my technical support prepares those PDF and he shares it on that platform. Okay, so I'll move ahead. इसके बाद क्या है? Goods. Because लेन देन किसका होता है? Goods का होता है. Normally goods का होता है. Right now when you're going to a shop and buying bread, eggs, butter, goods. You're going to D-Mart, you're buying a chappal, you're buying a t-shirt, you're buying compass, you're buying milk, goods. Biscuit, goods. सो आई रिपीट, ये सब क्या होते हैं? गुड्स. दुकानदार जो बेचने के लिए तैयार है वो क्या है? गुड्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द शॉप, स्मॉल और बिग शॉप, द शॉपकीपर और द स्टाफ ऑफ दैट शॉप शुड बी विलिंग टू सेल इट टू यू. उसको गुड्स कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दुकान के अंदर आपको कुछ दिखा बट दुकानदार उसको बेचना नहीं चाहता तो वो गुड्स नहीं है. इफ यू गो टू डी-मार्ट, आजकल आप डी-मार्ट जाओ, बिग बाजार जाओ, रिलायंस हाइपर मार्केट, यू गो टू सम डिपार्टमेंटल स्टोर, एट द वेरी बिगिनिंग आपके तरफ वो गन डालेंगे, थर्मोगन, एंड दे विल चेक योर टेम्परेचर. नाउ इफ योर चाइल्ड, इफ यू आर समबडी हुज बिग, शादीशुदा हो, आपका छोटा 2 साल का बच्चा है, उसको वो गन पसंद आया और वो ओके हट से, जिद से डी-मार्ट के अंदर अपना हाथ पाँव मारने लगा, नहीं मेरे को चाहिए. कैन यू बाई दैट? कैन यू गो एंड टेल दैट पर्सन, सिक्योरिटी गार्ड आउटसाइड, मेरे बच्चे को पसंद आ गया ना, आप प्लीज़ दो ना, ओके, मैं डबल प्राइस दूंगा. बोलेगा सर आपके लिए नहीं है ये हमारे यूज़ के लिए है, आपको हम नहीं दे सकते हैं. या पे जो CCTV लगा के रखे हैं ना, आपको वो पसंद आएगा, हम थोड़ी उठा के देगा तुमको, वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे यूज़ के लिए. बाकी जो शेल्फ पे रखे वो आप ले लो ना, कोई बात नहीं है. बिस्किट ले लो, चाय पत्ती ले लो, हनी ले लो, ओके, मध ले लो, गुड़ ले लो, चावल ले लो सर, ये मत लो, ये गुड्स नहीं है सर हमारा. सो इफ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रूट वाला, वो बोलेगा सर मेरे लिए फ्रूट गुड्स है. अगर आप बोलोगे यार तेरी टोपी बड़ी स्पेशल है, क्या स्पेशल, मेरे को पसंद आ गया, मेरे को वो टोपी देना, मैं तेरे को 2 गुना प्राइस देगा. बोलेगा सर इतनी धूप है, हमको वो टोपी, हमको ये सिर ठंडा रखने के लिए चाहिए, हम वो नहीं बेच सकते हैं तुमको, वो गुड्स नहीं है. फॉर दैट शॉपकीपर, फॉर समवन हु सेल्स फ्रूट्स इज गुड. फॉर समवन हु सेल्स वेजिटेबल इज गुड. फॉर समवन हु मेक्स फ्रॉम दोज फ्रूट्स जूस, fruit juice becomes good. For someone who sells your mobile is goods. For someone who sells a car becomes goods. अगर आप किसी दुकान में जाओगे और दुकान के बाहर का रोल्स रॉयस आपको पसंद आ गया और आप जाके दुकान में बोलोगे, दुकान के अंदर का मेरे को कुछ पसंद नहीं है, दुकान के अंदर क्या है, बाजी है, बट दुकानदार बड़ा सेठ आदमी है, उसने अपना रोल्स रॉयस बाहर पार्क करके रखा है, बोलेगा नहीं मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को ये कांदा बटाटा नहीं चाहिए, मेरे को बाहर का रोल्स रॉयस पसंद आया. द शॉपकीपर विल नॉट सेल इट टू यू. क्यों? बोलेगा सर वो तो मेरी गाड़ी है, मैं तो देखो ये कांदा बटाटा बेचता हूँ, ओके, एंड बाकी के जो भी स्टफ़ है दुकान के अंदर भी, ओके. सो सर वो मैं नहीं बेच सकता आपको, वो गुड्स नहीं है. हाँ, सो प्लीज़ नो गुड्स क्या होता है. दैट प्रोडक्ट दैट द शॉपकीपर और द शॉप वाला, ओके, और शॉप वाली, मालकिन
is willing to sell. That is called as goods. I hope ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी वेराइटी, गुड्स क्या है, वो आपको समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम ऑल थ्रू आउट दिस ईयर फॉर यू. ये पूरे साल आपको आएगा. क्या, कैपिटल एंड ड्राइंग. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड. ये दोनों सुना रहेगा. हाँ सर सुना है, इसमें क्या नया है. कैपिटल मतलब कैपिटल वर्ड. Oh sir, when you're typing on a keypad now, you can get small a, big a, small m, big m. So the big one is called as capital letter. No, we are not talking about that. Okay sir, then you're talking about capital of India, capital of Australia, capital of South Africa, capital of any country. No, I'm not even talking about that capital. Okay, I'm not talking about the geographical capital. I'm not talking about the alphabetical capital. I'm talking about the owner of a business, because connected to the owner of a business, two words are used, capital and drawings. Drawings does not mean, sir, I used to do when I was a small, sir, there used to be a subject by the name of drawings. Our drawing teacher, a madam, professor used to teach us, we used to do lot of drawings. No, this is not that drawings. Okay, so what is this? ये है क्या. देखो भाई, आपको ये समझना है कि there is a shop, because that is what you're doing in accountancy. You are recording of what is happening in a shop. What is happening? Transaction of what? Goods or services. Okay, तो एक दुकान है. हाँ देखो मेरे ऊपर दुकान है. एक दुकानदार है. वो कौन है? वो देखो ना, और वो दे रहा है. दुकानदार बड़ा दयालु है रे, दे रहा है. Yes, the दुकानदार is like when you were small. Everybody, no, all of you students, you were small. I also was small. Very small, पैदा हुए थे. That time, did you, today many of you may have a mobile phone, may have watch, may have a cycle. Okay, I'm not very sure about other things. Good clothes. Okay, you may have a lot of things. Do they belong to you? You may say, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. Well, I'd say, see, technically तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो जीन्स जो आपका है ना, और वो जो टी शर्ट है ना, वो जो जर्सी है ना, वो जो आपने फुटबॉल के लिए शूज़ खरीदे हैं, ये सब आपका नहीं. वो जो साइकिल है ना आपका 7 गियर 9 गियर वाला, वो भी आपका नहीं है. यू मे से, नो सर इट्स माइन, आई डोंट अलाउ एनीबडी टू यूज़ इट. माय डियर, पैसे कहाँ से आए उसके लिए? मम्मी पापा ने दिए ना. सो यू से, सो व्हाट सर, तो क्या, मेरा मम्मी पापा है, उसका पैसा मेरा पैसा. लेट्स बी फ्रैंक, आजकल ऐसा नहीं होता. ओके, आजकल मम्मी पेरेंट्स के और माँ बाप का प्रॉपर्टी पे, भाई भाई का, बहन बहन का, परिवार में झगड़ा होता है और सालों से कोर्ट में चलता आ रहा है. इट्स गोइंग ऑन. सो इमोशनल कनेक्शन आई एम नॉट टॉकिंग. यू डेफिनेटली आर इमोशनली आर कनेक्टेड to your mom, dad, brother, sister, yes, but when it comes to shop, dukan, there is no emotion, there is no rona dhona, there is no pyar ishq mohabbat, no, there is paisa, only paisa, paise ka rishta. So between the shop and the owner there is a paise ka rishta, meaning whatever the owner gives the shop is called as capital. That is the terminology, the word. Okay, shop को ओनर ने क्या दिया? पैसा, वो कैपिटल है. और क्या दिया? गाड़ी, वो कैपिटल है. और क्या दिया? फर्नीचर, डेस्क दिया, सोफा दिया, कबर्ड दिया, वो कैपिटल है. जो भी मालिक ने दुकान को दिया, दुकानदार ने दुकान को दिया, बिजनेसमैन ने, बिजनेस वुमेन ने बिजनेस को दिया, इज टर्म्ड एज कैपिटल. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि ये तुम्हारे इधर दिमाग में सेट होना चाहिए, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट आई स्टूड 2 years ऑफ जूनियर कॉलेज लाइफ, इन एवरी प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट, मैं गलती नहीं कर रहा तो ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम यू विल गेट द वर्ड कैपिटल. एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग, कैपिटल मतलब स्मॉल लेटर, बिग लेटर, नो, दिल्ली कैपिटल, नो नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट माय डियर. वी आर टॉकिंग अबाउट जो बिजनेसमैन एक बिजनेस को देता है. जैसे आपके माँ बाप
आपको देते हैं, वैसे ही दुकान का माँ बाप कौन है? एक बिजनेसमैन है, वो देता है। और जब वो देता है उसको कैपिटल कहते हैं। क्या देता है? एनीथिंग। आपके माँ बाप ने आपको अनगिनत चीजें दी है, 1 2 3 4 कितने चीजें दी है। ऑल ऑफ दैट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन हियर। ये जो हाथ फैला के दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है? अरे उसने बहुत पैसा भी दिया, मशीन भी दिया, फर्नीचर भी दिया, उसने कैश मशीन भी दिया, उसने बहुत सारा चीज़ दिया, सब बन गया कैपिटल। तो ये ड्राइंग क्या है? ये उसका बिल्कुल उल्टा है। सो मतलब देख, दुकान वही है और मालिक वही है, बट ना उल्टा हो रहा है। ड्राइंग का मतलब मालिक ले रहा है। व्हेन योर पापा इज गोइंग to the work and your papa will say, "Arey, I don't have change to travel in the bus." The bus wala will ask for 10 rupees. Saab sutte diya 5 rupees. I don't have. So your papa may request you, do you have 5 rupees change? Do you have 10 rupees change? Can you give it? You give. Keep papa. That is what drawings. जो पापा ने पहले दिया, क्योंकि वो पैसा थोड़ी तुम्हारा था, वो पापा का ही था, ले लिया वापस, ले लिया वापस। ओके। इफ पापा yesterday came home wet because बहुत बरसात हो रहा था and his bag got wet and today again he's going for job, but he's like, where do I keep my documents, where do I keep my laptop, where do I keep my tiffin? So the papa will request you, अरे तुम तो कॉलेज जाता ही नहीं है, तो तुम्हारा बैग फ्री है, कैन आई टेक इट? तुम दे देता है। सो वॉट एवर पप्पा गिव्स इज कैपिटल and whatever papa takes is drawings. Please note that. तो ये जो है ना दुकानदार का शक्ल नहीं दिख रहा है आपको, ओके, बट अगर वो दुकान से कुछ लेता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। क्या लेता है? कुछ भी ले सकता है। वो तिजोरी से पैसा ले सकता है, वो गुड्स ले सकता है, प्रोडक्ट्स ले सकता है खुद के लिए, ओके, अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ही इज अ फैमिली मैन। ये जो दुकानदार है इज अ फैमिली मैन। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुकान से अगर कुछ लेगा, ड्रॉइंग्स। ओनर गिव्स, मालिक ने दिया, कैपिटल, मालिक ने लिया, ड्रॉइंग्स। 2 words very very important in the subject of accountancy, any level, whether it is 11th or 12th or later on in fact in further higher education also. Okay, आशा करता हूँ आपको कैपिटल एंड ड्राइंग समझ में आया, एंड वी विल बी डूइंग दिस many more times when we go ahead. Next, मैडम क्या कर रही है? लेट मी शो यू. डेटर एंड क्रेडिटर, अगेन 2 important words. डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का सिंपल मतलब है कस्टमर, क्रेडिटर पे हम लोग बाद में आते हैं। डेटर का सिंपल मतलब है कस्टमर। हु हैज़ अ कस्टमर? Wrong question. Who does not have a customer? The biggest company in the world, Microsoft, Google, Amazon, and the very smallest dukandar outside your house. Everybody is existing because they have got customers. So डेटर कस्टमर से कैसे कनेक्टेड है? अरे इक्वल टू कस्टमर एंड डेटर इज वन एंड द सेम. डेटर मीन्स व्हाट? Read, a person who has to pay the business. Yes, that person is my customer, that person is my customer. He has to pay me 100, he has to pay me 200, he has to pay me 500. That is what customers do. Okay, they come and sometimes they don't pay the money. They say after 2 days, 5 days, 10 days, 20 days. They promise to pay in future. They have to pay me, the shop. That such a person is called as debtor. The word debtor, okay, is in 2 parts. Debt, D-E-B-T. I hope you can notice that. D-E-B-T and O-R. Okay, so the word debt का मतलब क्या है? कर्जे में. Okay, I'm not talking about करोड़ों का कर्जा, but when the shop sells to someone, even one book, maybe 20 rupees ka book, okay, and that person does not pay but promises to pay, then that person becomes a debtor. Okay, please note. Okay, a debtor कौन है? जिससे दुकान को पैसा लेना है.
डेटर बन गया. ओके, तो जो भी कस्टमर दुकान में आता है और अगर वो पैसे नहीं देता तो वो बन जाता है डेटर. ओके, हाँ. तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर उसका उल्टा. क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसा देना है, जिसको वो आया इन योर विसिनिटी, यू विल बी हैविंग अ ग्रोसरी शॉप जहाँ पे आपको दाल, चावल, सब्जी, फल, मिल्क, एग्स, मल्टीपल थिंग्स, ब्रेड मिलता रहेगा. ओके, नाउ डू यू थिंक वो दुकान में ही ब्रेड पैदा होता है? नो. बिस्किट बनाया जाता है? नो. चावल उगाया जाता है? नो. पानी, बिस्लेरी पानी? नो. Everything comes from someone. That someone is a supplier. That दुकान shop has to pay the supplier, क्योंकि obviously free का थोड़ी मिलता है. So creditor कौन है? अरे जिसको मुझको पैसा देना है, दुकान को पैसा देना है, because हमने प्रोडक्ट उसे, the shop is a middleman. The shop that you go to is a middleman. Okay, there is a supply. There's something called as a marketing chain. Okay, the first is the company. I'll keep it simple. The second is the shop that you go to, and the third is you, the customer. Okay, so shop has to take money from you, so you become the debtor, but the shop has to pay money back to the supplier, so the supplier is called as creditor. So I repeat, simple words में debtor कौन है? debtor वो है जिससे पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर कौन है? वो है जिसको पैसे हमें देने हैं. कनेक्टेड टू डेटर एंड क्रेडिटर. डेटर का मतलब रिसीवेबल, मनी शुड कम, एंड क्रेडिटर का मतलब पेएबल, आई शुड पे मनी. कनेक्टेड टू देम इज वन मोर phrase or word called as bad debts. In a very filmy style the word is written. Bad debts. What is bad debts? See, the word itself is bad, so it will not give you a good feeling. Okay, about an irrecoverable amount from a debtor. Oh, so it's connected to a debtor. Yes, if there are 10 debtors, that means 10 people from whom you have to take money. 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसमें से एक बंदा या बंदी भाग गया. भाग गया क्या मतलब? भाग गया, पता नहीं किधर गया. मैं कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, ईमेल कर रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहा हूँ, ये जवाब ही देता नहीं है मेरे को. तो फिर मैं पैसे का क्या करूँ रे? उसको मेरे को 50 रुपीज़ देने का था. व्हाट डू आई डू ऑफ दिस 50? फॉरगेट इट. हाँ, फॉरगेट इट. यस, व्हाट you'll do? You'll run behind him. Where you'll run? You don't know also in which direction he is gone. Is he going to participate in Tokyo Olympics? नहीं पता. So what will you do? You can't cry about it. Maybe you'll cry. Go home, cry. Then tomorrow there's a new day. You have to continue your business. So I repeat myself. Bad debt होता है because a shop has got multiple customers. Some like these great people behind me. These great people have from various banks in India taken money. So they were customers of the banks. And then they didn't pay the money, and they became India में ही नहीं, गायब हो गए. Yeah, some are arrested and they will be brought to India or have been kept in India. So the money that they had to give the various banks, what will the bank do? Will the bank मातम मनाएगा, शोक मनाएगा कि बाबा हमारा 30 करोड़ लेके गया, 100 करोड़ लेके गया? बैंक बोलेगा हमको तो बिजनेस करना है, कल भी हमको बिजनेस करना है, परसों भी करना है, हम थोड़ी रुक सकते. इनको जो पैसा देना है जो वो नहीं दे सकते, हमने लेबल लगा दिया बैड डेप्ट. डेप्ट, DEBT मीन्स व्हाट? पैसा लेना है, बट अगर वो नहीं आने वाला, बैड. क्या करेंगे? गुड डेप्ट क्या है? अरे आ गया, गुड, अपनी जेब में आया. बट व्हाट इज बैड डेप्ट? यू विल नॉट गेट इट. आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा. पहले पुलिस उनको पकड़ तो ले, उनको दूसरे देश से इंडिया तो लेकर आए, तब जाके हमको हमारा पैसा मिल सकता है. तब तक बैड डेप्ट. इट इज कनेक्टेड टू अ डेटर. ओके, सो देर आर 3 things. Debtor, money should be taken.
क्रेडिटर, मनी शुड बी पेड, एंड बैड डेट, अरे मनी नहीं आता है, पैसा ही नहीं आता है, नुकसान हो गया, बैड डेट. आई होप द थ्री वर्डिंग्स थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक्ड is understood by you. Now all of these are not over, these are just an introduction. I'm giving you a teaser, a trailer, क्योंकि इसके बाद में इन पे चर्चा हमको बहुत करनी है. तो कैपिटल, ड्राइंग हर प्रॉब्लम में आता जाएगा. डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, अरे बहुत बार आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, बहुत बार आएगा. टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. व्हाट आर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. तो आप पूछोगे सर अभी खर्चे में क्या वैरायटी होता है? ओके, खर्चा खर्चा होता है, मैंने पैसे दिए, यस, बट खर्चे से कुछ फ़ायदा भी तो होता है. दैट इज़ द रीज़न आपने पैसे दिए ना. हाँ, अगर आप जाके 1 डज़न अंडा खरीदा, या सोचो आपने एक च्युइंग गम खरीदा, जस्ट 1 च्युइंग गम टाइम पास के लिए. ओके, तो आपने मे बी 3 rupees, 4 rupees, 5 rupees you paid for that chewing gum. So that chewing gum is what kind of a kharcha? See, kharcha gives me benefit. जब मैं कुछ खर्चा करता हूँ, when I spend, expenditure, I get benefit. But chewing gum gave me benefit for 1-2 hours, sir. For 1-2 hours, na sir, I was munching. Chap, 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 chap. So that is, sir, just 2 hours benefit I got. हाँ. So when you pay money but you get benefit for very less time. Now please understand, in accountancy whenever I say the word time का मतलब क्या है? 1 साल. उसके हम लोग उस पर चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे, not today's lecture but in future. But in accounts, just like if I ask you how long was your first standard? Normally it should be 1 year. Okay, your 5th standard, 1 year. Your 10th standard, 1 year. Somebody will say, अरे no sir, वो सर 2-3 अटेम्प्ट लग गया सर, वो हुआ ही नहीं मेरा पास. बट नॉर्मली सबका 1 साल ही होता है ना एकेडमिक ईयर, फिर नया एकेडमिक ईयर. सिमिलरली इन अकाउंट्स 1 साल का 2021 खत्म, 2022 चालू, खत्म 2023 चालू. एवरी ईयर न्यू अकाउंट्स, न्यू अकाउंट्स, न्यू अकाउंट्स. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट टाइम इन अकाउंट्स, इट्स ऑलवेज 1 ईयर, 1 साल. उतना प्लीज याद रखना. ओके, तो व्हेन आई पे, जब मैं पैसे देता हूं और मेरे को फायदा होता है 1 साल से कम, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू दिखता है. बट जब मैंने खर्चा किया और मेरे को फायदा मिला 15 साल तक, 15 साल तो बहुत टाइम है. 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल से ज़्यादा, 15 हो 50 साल हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट फोटोग्राफ्स हैव आई पुट? इफ यू आर समवन हु मेक्स आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम बनाता है ना, कस्टमर को बेचता है. सो व्हाट डू यू रिक्वायर? You require that above machine, because that machine is going to be making that particular ice cream and it is going to serve it. That machine पे आपको खर्चा करना पड़ेगा. मंडे को नया, ट्यूसडे को नया, वेडनेसडे को नया. नो सर, गलत. ओनली 1 टाइम सर. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मशीन सर. एक बार खरीदने का बस, बाकी चलता है सर. क्लीन रखने का, मेंटेनेंस करने का चलता है सर. 2 साल, 5 साल, 4 साल सर चलता है. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. आप वो एक ही बार खर्चा करते हो. ओके, बट रेवेन्यू का मतलब क्या? अरे सर, उसके अंदर सबसे पहले तो दूध डालना पड़ता है, तब जाके वनीला, बटर स्कॉच, अलग अलग वेराइटी बाद में बनता है. बट सर, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग आइसक्रीम, मिल्क. Now I can't say sir that I buy only milk once, then sir 3-4 years I don't buy. No. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, you continuously again and again you keep on buying that particular milk. Then मतलब different milk, but again and again. तो I repeat, capital expenditure क्या है? Capital expenditure normally बड़ा होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है, उसका फ़ायदा ज़्यादा टाइम, मतलब 1 साल से ज़्यादा. अगर आपने गाड़ी खरीदा, ये मैं बहुत बार मेरे बच्चों से पूछता हूँ, अकाउंट्स के बच्चे, ओके, मेरे खुद के 2 ही हैं. हाँ,
सो दे टेल मी सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कार कैपिटल क्यों? क्योंकि कार एक ही बार लेते हैं, उसको चलाते हैं अच्छे से आराम से, माथेरान, महाबलेश्वर, अंधेरी, दहीसर, डिफरेंट प्लेसेस, ओके। हाँ, वही गाड़ी चलाते हैं, बट उसमें जो पेट्रोल डालते हो, आजकल तो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, ओके। तो पेट्रोल दैट यू पुट सर, वो तो हर 3-4 दिन में डालना ही पड़ता है। So the car is only one time, the petrol is again and again and again, the above machine is only one time, but the milk in that is again and again and again. तो जो one time होता है that is called as capital expenditure, जो again and again and again repetitive होता है उसको कहा जाता है revenue expenditure. Let me give you a very simple example. What is this? Sir, so cute looking baby sir. सर आपको फोटो कैसे मिला? हमको फोटो कैसे मिला? When this baby was delivered, कभी ना कभी तो डिलीवरी होगी रहेगी ना हॉस्पिटल के अंदर, तो मम्मी डैडी को खर्चा हो गया रहेगा 30, 40, 1 लाख, डिपेंड्स कौन सा हॉस्पिटल में गया रहेगा। सो मम्मी पापा को वो खर्चा डिलीवरी का, वो क्या है? कैपिटल खर्चा, वो एक ही बार हुआ था। देखो ना, महाशय पैदा हो गया, कितना आराम कर रहा है, बट एक बार ये पैदा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिलीवरी एक बार, ओके। क्योंकि वापिस पैदा नहीं करते इसको, एक ही बार पैदा करते। फिर ना उसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आफ्टरनून, नाइट, मॉर्निंग 9 o'clock, he keeps on doing किरी वही keeps on doing किरी। यार उसको खिलाना पड़ता है। Mom and dad with all love and affection and care do that, but what am I trying to say, जो फीड है बच्चे का, जो हम लोग भी पैदा हुए थे, अपना भी पैदा होने का खर्चा वॉज कैपिटल, उसके बाद में मम्मा पापा हैव बीन फीडिंग अस, खा खा खा, कभी तो उनको पसंद भी नहीं आता है तो भी खिलाना पड़ता है। सो आई रिपीट, वो तो रेगुलर हो गया सर, हाँ वो रेवेन्यू एक्सपेंस। आई होप यू गेट द थिंकिंग राइट। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल मतलब एक बार एंड रेवेन्यू मतलब बार बार। इन अकाउंटेंसी एक तीसरा भी है, दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला। You see, what did I say about capital expenditure? The benefit is for 10 years, 15 years. Revenue, the benefit is for 1 day, 2 day, 3 day, 1 साल से कम। बट ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आजकल इतना पढ़ाया नहीं जाता है, बट टेक्स्ट बुक में है तो बता दिया मैंने। इसका बेनिफिट ये ना, ये बीच में है, 1 साल से 2-3 साल ऐसा बोलते हैं उसको, परफेक्ट नहीं एकदम। व्हाट इज 1 साल से 2-3 साल? इफ यू पेंट योर हाउस एवरी ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इफ यू पेंट योर बिल्डिंग 3 years में एक बार, पूरी बिल्डिंग 3 years में एक बार, क्योंकि अगेन एंड अगेन पेंटिंग करने का जरूरत नहीं है बिल्डिंग का, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू। क्योंकि वो 20 साल के बाद नहीं करना, बट 3-3 साल में पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। सो व्हेन द बेनिफिट, फायदा, कैपिटल का फायदा 10-20 सदियों तक, रेवेन्यू का फायदा 2 days 3 days, ओके, 1 साल से कम। बट डिफर्ड रेवेन्यू का फायदा 1 साल से ज़्यादा, 2-3 साल से कम, बीच में, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू। यू मेनली रिमेंबर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू टेक्निकली वो अभी आजकल टेक्स्ट बुक में, बड़े टेक्स्ट बुक्स में, बड़े स्टैंडर्ड्स के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज दे हैव काइंड ऑफ रिमूव्ड इट फ्रॉम द सिलेबस। They are only explaining capital and revenue, which is the more practical definitions or explanations. Hoping कि जितना मैंने आज पढ़ाया, which are these, transaction क्या है, goods क्या है, capital drawings क्या है, debtor creditor क्या है, types of expenditure, they are only 5. ये 5 की गाड़ी आगे जाएगी and multiple things will get added. Many things जो आपने सुना नहीं है, no problem, मुझको सुनवाना है और आपको मेरे से सुन लेना है। I hope ये पूरी और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दैट, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते चैनल को, आप बेल आइकन क्यों नहीं दबाते? तो अगर सर हमने कर दिया तो थैंक यू, ओके, बट देन व्हाई डोंट यू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट स्टीवन सर मेक्स इट ईजी? क्योंकि जस्ट लाइक होपफुली आई एम मेकिंग दिस सब्जेक्ट अ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू, इट विल ऑल्सो बी द सेम फॉर योर friends, okay? And the more the channel's reach increases, the more people get benefit out of all of these lectures. If you're a commerce student,
2 years minimum you have accountancy, and depending upon the third, fourth and fifth year आप क्या लेते हो, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. वो मैं आपको कभी आगे आने वाले लेक्चर्स में अलग से उसका एक वीडियो बना के बता दूंगा. बट प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस चैनल की जानकारी, इस चैनल का जो लिंक है, इस चैनल के जो वीडियोज़ हैं, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें. ओके, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, और वो डाउट आपको टाइप करके देना है. तो प्लीज़ द कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन. सजेशंस ऑलवेज वेलकम, रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज फाइन. यू कैन ऑलवेज डू दैट. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. टाटा.